morning. Good morning. Hi, good morning, everyone. Good morning, I Priya. hope we all have gathered here. Good Today, morning. I, on behalf of Dr. Deepthi Verma, welcome you all in this beautiful morning session. I am Priya Nehra from Sonipat, Haryana, and today we'll be reading the book together. I'll be your host today, okay? I just hope that I'll do my job absolutely perfectly, the way ma'am wanted to be and the way you all wanted to be. I know the universe is with me and your all blessings are with me. Thank you so much, everyone, from the bottom of my heart for joining in today and be a part of this beautiful session. Uh, I've made Bitty ji and Vijay sir the co-host. Please take care of the session, sir, and ma'am, of course. So yeah, we'll be starting the magic book today. I'm bringing the book into the screen. I'll request all of you to please catch hold of your mute buttons so that the meeting doesn't get disrupted in between. Right? Yeah. I'll be sharing the screen now. Yes. Thrilled, Priya, to hear from you. Thank you, ma'am. It's always Good pleasure morning. to hear your good morning in the morning session. It brings an energy into our body, a new electrifying energy that brings I'm sure that every one of us can vouch on that. We really missed you when you were in Spain, but yeah, we were happy that we were enjoying Enjoying. to the best of your life. Yes, Yeah. thank you. So Thank you. yeah. So we'll be starting the session now. So today we'll be starting reading the magic book, The Secret, which is the part of the secret. This is secret is a particular series of books written by Rhonda Byrne. Rhonda Byrne is a beautiful author and a TV producer who used to write beautiful screenplays, stories, and all. After knowing the secret of learning, the secret of getting a beautiful life, she wrote this book, The Magic. The Magic is a third book in the series of the secret books, and we'll be reading this book today. The book will be read by Bitty ji from Ludhiana. And yes, Bitty ji, we can start from here. Good morning, everyone. Good morning. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. Yes. So, Bitty ji will take a little pause here. So we all know, and a few time later, we'll come to know everything about this book, this beautiful journey. हम में से सबको काफी सारे लोगों को पता है कि what this book is all about, and कुछ लोग जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, नए participants हैं, थोड़ा सा उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ द मैजिक के साथ. एंड जो हम लोग पहले से कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक ब्रश अप होगा, हम सबके लिए एक ब्रश अप होगा टू गो थ्रू द बुक. सो दिस मैजिक का मतलब इस मैजिक बुक में ये है कि द विद रीडिंग दिस बुक, बाय रीडिंग द बाय गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ दिस बुक, हम अपनी लाइफ को ब्लिसफुली हैप्पी बनाएंगे. हमें जैसे पता है कि हम सबको एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए रीडिंग की, बुक रीडिंग की, एंड दैट टू अ सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग की, है ना. तो हमने जितने भी बहुत सारी बुक्स आज तक पढ़ी हैं, उनमें से मैंने कुछ बुक्स हमारी सेल्फ हेल्प की होती है जो कि हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है ना. दैट डिफाइंस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमें तरीका बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके किस तरह हम अपने लाइफ को, हम अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं. सो दैट इज merely ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. There are some books that tells you how you can develop a habit. You can develop a new habit into your life. You do not procrastinate, है ना. हम लोग को बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत होती है, तो कुछ बुक्स ऐसी हैं हमारे पास, हमारी सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत सारी ऐसी हैं जो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा दिलवाते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं, है ना.
कुछ बुक ऐसी हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें बताती है कि हम स्पिरिचुअलिटी का रास्ता कैसे अपना के एक पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ को लीड कर सकते हैं. There are many categories among the self-help also, but the beauty of this book is the magic that we are reading now. This is about how beautifully Rhonda Byrne has made an alloy of all these attributes in a single book called Magic. You will be developing your beautiful habits here. You will be a better person every day. Every day in a new way, you will be learning something new. And वो आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाएगी. Thirdly, you will be able to visualize your dreams. है ना? अपने ड्रीम्स को लिस्ट करके, उसको विजुलाइज करके, उसको अटेन कर पाओगे आप. उसके बाद रोंडा बर्न हमें ये भी सिखाती हैं कि किस तरह से हम ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन, इन तीनों टेक्निक्स को मिलाकर हम अपने रिश्तों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं. हमें फॉरगिव करने को सिखाएंगी वो, कि किस तरह से हम अपने आप को और औरों को फॉरगिव कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं. किस तरह हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, है ना. किस तरह से वो ये बताएंगी कि किस तरह से जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे टेबल, चेयर, कुर्सी है, या हवा है, या ये सब नॉन लिविंग है ना, हमारे लिए नॉन लिविंग है. हम लोग साइंस में जब पढ़ते थे, वी यूज्ड टू लिस्ट मैन मेड थिंग एंड नेचुरल थिंग्स, है ना, क्लासिफाई करते थे. सो रोंडा बर्न हमें बताएंगी कि किस तरह से ये सारी की सारी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बिना हमारी लाइफ किस तरह से मिजरेबल हो जाती है. रोंडा बर्न हमें ये सिखाती हैं कि किस तरह से ग्रैटिट्यूड को हम इंग्रेन करके अपने लाइफ, डेली लाइफ के रूटीन में हम बहुत आराम से उस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को फॉलो करके हम एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में उभरेंगे, जो कि हमारे स्पिरिचुअल गुरुज ने हमें सिखाया है या साइंस ने सिखाया है. रोंडा बर्न ने बहुत ही खूबसूरती से हिस्ट्री, साइंस और स्पिरिचुअलिटी तीनों को बहुत अच्छे से एमालगमेट किया है, एक बहुत ही खूबसूरत अलॉय बनाया है, जिसको पढ़कर हम ना सिर्फ अपनी ड्रीम लाइफ को अटेन कर सकते हैं, उसके अलावा हम एक बहुत ही ब्लिसफुल लाइफ जिएंगे, हम एक बहुत अच्छा इंसान बनेंगे, जो महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है, जो लॉर्ड क्राइस्ट ने हमें सिखाया है, जो कृष्णा हमें सिखाते हैं, जो कुरान से हम सीखते हैं. आप ये लगाओ, उन सभी के ट्रांसक्रिप्ट, छोटे छोटे स्क्रिप्चर्स, वो सारे के सारे कोट्स इस बुक में ब्यूटीफुली बहुत सारे जगहों से लिए गए हैं. उन्होंने बहुत ही तसल्ली से इस बुक को लिखा है, साइंटिस्ट को कंसल्ट करके बहुत सारे सेक्रेट एंड स्पिरिचुअल टेक्स्ट, वेस्ट के भी और एशिया के भी, है ना, बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट को फॉलो करके उन्होंने बनाया है. कितनी खूबसूरती से उन्होंने डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया है कि किस तरह से हम लोग इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे. उन सब का एक बहुत ही अच्छा सा निचोड़ ये मैजिक बुक में है. आप लोग इसको पढ़कर देखेंगे कि किस तरह से इतने सारे हीरोज हैं जो हमारे. रोंडा बर्न ने ना एक हीरो बुक भी लिखी है, उसमें बहुत सारे हीरोज हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं, जिन्होंने ये मैजिक बुक को फॉलो करके या सीक्रेट को फॉलो करके जिन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक किया है, रैग्स टू रिचेस बने हैं. वो बहुत ही खराब जिनके रिलेशनशिप्स थे, वहां से एक बहुत ही अच्छा इंसान बनकर बहुत ही खूबसूरत लाइफ अपना जी रहे हैं. वो सब हीरो बुक में हैं. लेकिन मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बता सकती हूँ कि us among all the participants, we are 94 now, हम में से भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो हीरो हैं, जिन्होंने डेली अपने लाइफ में जो एक छोटा बड़ा मैजिक वो अपने लाइफ में इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके कर रहे हैं. एंड आई एम ऑल्सो वन अमंग देम. दीप्ति मैम इज, वी ऑल आर. सो रोंडा बर्न कहती हैं कि जिस तरह से वो जो हीरोज हैं अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बना चुके हैं या कंटिन्यूअसली बना रहे हैं, उसी तरह से
जो भी इस बुक को पढ़ेगा एंड अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि पढ़कर हम लोग बैठ जाएं, बाकी कुछ ना करें। वो मैम कहती है ना, द रियल थिंग, द रियल प्रैक्टिस स्टार्ट्स एट 8 AM, है ना। 7:30 से 8 तक फिर भी हम लोग उसी जोन में रहते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि मैम ने जो सिखाया है वो हम लोग उसको पढ़ें, हम लोग उसको फॉलो करें। लेकिन 8 बजे से जब हमारी रियल लाइफ शुरू होती है, जब हमारी जद्दोजहद शुरू होती है, तब हम लोगों को पता चलता है कि क्या हम लोग उन सब चीजों को जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। और मुझे वो मैम ने एक बात बोली थी एक दिन कि डाउन्स जो है वो कुछ नहीं होता है, डाउन्स इज अगेन एक पुश होता है आपको अप जाने के लिए ही। तो हम लोग स्लिप भी करेंगे, गलतियां भी करेंगे, लेकिन फटाफट से वो लैडर को पकड़कर हम लोग ऊपर आ जाएंगे, फिर से वही ग्रैटिट्यूड जोन में, वही लव जोन में आ जाते हैं इस मैजिक बुक को पढ़कर। इस मैजिक बुक में मुझे ये बुक इतनी ज्यादा अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि हर बार हम लोग कुछ इसमें नया सीखते हैं। हर बार हम लोग जब ये बुक शुरू करते हैं एक नए इंटेंशन के साथ शुरू करते हैं कि इस बार हमारा इंटेंशन ये है ना। रोंडा बर्न का भी इंटेंशन था कुछ वो बुक लिखने से पहले। शी वॉन्टेड टू रीच द मिलियंस एंड शी एक्चुअली डिड। आपको पता है दिस इज वन ऑफ द बुक, वन ऑफ द लाइक इट्स अ वेरी स्पेशल बुक which has been translated in many different languages. Approximately 50 languages में ये बुक को ट्रांसलेशन हो चुका है इस बुक का। So that हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर है उसको पता चले इस सीक्रेट के बारे में कि ये सीक्रेट क्या है ना। ये सीक्रेट टू स्केल द लैडर ऑफ सक्सेस, टू स्केल द लैडर ऑफ बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ये कैसे हम लोगों को करना है वो इस बुक में रोंडा बर्न ने बताया है। या तो हम लोग पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे रोंडा बर्न कहती हैं कि वन वर्ड विच चेंजेस एवरीथिंग, दिस वर्ड एक्चुअली हैज चेंज्ड अस, हैज चेंज्ड मी and all of us I know. So what is this word? We all know what is this word and we'll be knowing more in details about this word. हमें पता चलेगा कि खाना खाने से पहले किस तरह से हमें ये रियलाइज करना चाहिए, ये खाना हमारे पास जो आया है वो कैसे आया है, हमने कितना शुक्रिया उसके लिए फील किया है। और किस तरह से रोंडा बर्न ने, आप देखेंगे इतनी खूबसूरती के साथ वो जो बाइबल के ट्रांसक्रिप्ट्स भी उन्होंने लिए हुए हैं, गीता से भी लिए हुए हैं। बाइबल में ये बोला गया है कि एवरीथिंग जो कि हेवन से लेके अर्थ तक है, जो भी चीज आपको दिखती है या नहीं दिखती है, आप फील करते हो, आपने उसके बारे में सुना होगा, उन सभी चीजों के लिए हम लोगों को किस तरह से ग्रेटफुल होना चाहिए, किस तरह से ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, किस तरह से उन सब चीजों को थैंक यू बोलना चाहिए, वो रोंडा बर्न हमें सिखाएंगी, है ना। तो आप ये देखो, थैंक यू बोल हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं, हमें पता होता है कि हमें कोई जब कुछ देता है तब हमें थैंक यू फील करना होता है, हमें थैंक यू बोलना होता है। लेकिन रोंडा बर्न हमें सलीका सिखाएंगी, हमें तरीका सिखाएंगी कि किस तरह से थैंक यू बोलना इम्पोर्टेंट है, किस तरह से थैंक यू फीलिंग के साथ बोलना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं बोलना चाहिए। तो वो हमें रोंडा बर्न सिखाएंगी, तभी जाकर हम ब्लिसफुली हैप्पी हो सकते हैं। एक डिसिप्लिन हमारे लाइफ में आएगा जिसमें डिसिप्लिन भी होगा और ब्लिसफुलनेस भी होगी, ठीक है। सो सो दैट पर्टिकुलर वर्ड इज ऑफ कोर्स वी नो ग्रैटिट्यूड। सो बेटे मैम अब यहाँ से पढ़े। In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. Yes, this is the most important thing that we have to know. और ये हर एक चैप्टर में आपको सिखाएगा कि आज इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदगी के किस पड़ाव में हो, आप कौन से एज ग्रुप में फॉल करते हो,
चाहे तो आप यूथ हो, चाहे आप एल्डरली हो, चाहे आप मिडिल एज्ड हो, है ना, ये तो हो गया एज का क्लासिफिकेशन। चाहे आप रिच हो, चाहे आप नहीं रिच हो, चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे आप एजुकेटेड नहीं हो, आप गोरे हो, आप काले हो, आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉन्डा बर्न कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी तरह की सिचुएशन में हो, किसी भी तरह की सर्कमस्टांसेस में हो सकता है आपने लाइफ में कुछ मिस्टेक्स भी करी हो, सबने करी होती है। रॉन्डा बर्न बताती है कि कितने भी अच्छे और कितने भी बुरे इंसान आप अपने आप को समझते हो, क्योंकि आपका ही परसेप्शन होता है वो। आप जितना भी अच्छा या जितना भी बुरा आपको अपने आप को समझते हो, आप अभी से, इसी वक्त से अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखोगे। कल आप एक अलग ही इंसान होगे, परसों उससे अलग, और धीरे धीरे करके ये 28 डेज की जर्नी में आप एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत इंसान के रूप में उभरोगे, है ना। तो यही बताते हैं कि मैजिक इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ। कोई एक रंग नहीं चेंज करेगा ये आपकी लाइफ का, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को चेंज कर देगा, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा पूरी तरह से। आपको पता है जैनिटर से हीरोज बनते हैं, है ना। आपने जैसे टोनी रॉबिन्स का आपने नाम सुना होगा, मैम के भी मेंटोर है। ही यूज्ड टू बी अ जैनिटर। आप वो अपने बिल्कुल ही बचपन में ना उन्होंने स्वीपर का काम करा था, और उससे आज वो कहाँ पर एक मिलियनेयर है, इतने बड़े, है ना, क्लोज टू बिकम अ बिलियनियर। और मैम उनके बारे में बताती हैं कि वो किस तरह से इतने अच्छे से मिलियंस ऑफ, हम लोग जूम के सेशन में हमारे यहाँ पर हमारे ग्रुप में 700 800 पीपल हैं। आपको पता है उनके जूम के सेशन आप अटेंड करोगे ना, मिलियंस आर देयर। बहुत सारे रूम्स होते हैं, 500 पार्टिसिपेंट्स के, और मिलियंस अटेंड दैट वन पर्टिकुलर मीटिंग एट द सेम टाइम। इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके। अगर हम लोग अपने आप पर जज करने लगे तो कैसे एक बंदा जो है, एक इंसान जो कि इतने लोअर जोन में था कभी, वो कैसे इतने रिचेस में आ गया। इट्स ऑल बिकॉज लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड। किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ को ब्लिसफुल बनाया है। मॉर्गन फ्रीमन का नाम हम लोगों को पता है। वो जो है ना कचरे में, मतलब जो वेस्ट होता था ना उसमें से निकाल के खाना खाते थे, आज वहां से वो कहाँ पहुंच गए हैं। हॉलीवुड के मेरे तो फेवरेट एक्टर हैं वो मॉर्गन फ्रीमन। आप मतलब इतने अच्छी तरह से वो डिस्कवरी के भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज लिखते हैं, वो सुनाते हैं, वो बायोग्राफीज पढ़ते हैं, वो मूवीज में एक्ट करते हैं। बहुत खूबसूरत एक्टर हैं वो, है ना। उसके बाद अगर आप रोनाल्डो के बारे में सुनोगे, अगर आप जोकोविक के बारे में सुनोगे, ये हर एक इंसान जो है इन प्रैक्टिसेस में फॉलो करके, विजुलाइज करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ यहाँ पहुंचा है। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वे बहुत ही अच्छे, बहुत ही एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हो, वो सारे के सारे वो स्पिरिचुअलिटी और साइंस और रिचेस, इन सभी चीज को मिलाकर वहां पहुंचे हैं। तो हम भी पहुंच सकते हैं। उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलना हमें रॉन्डा बर्न सिखाएंगी कि किस तरह से हम इन सभी चीजों को फॉलो करके एक बहुत ही अच्छे इंसान बन सकते हैं। हम एक डॉक्टर होंगे, हम एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट होंगे, हम एक मनी मैग्नेट होंगे, है ना। हम ये सब कुछ होंगे, ये सारी खूबियां हमारे अंदर आ जाएंगी जब हम इस बुक को तसल्ली से पढ़ेंगे और इन प्रैक्टिस को तल्लीनता से करेंगे। Yes, now we go into the acknowledgement part directly. Yes, yeah, ये पढ़िए मैम। By this means, you will acquire the glory of the whole world. The Emerald Tablets, 3000, 5000 BC. Yes. सो जो एमरल्ड टैबलेट है, एमरल्ड का मतलब आपको पता है कि ग्रीन कलर होता है। दैट्स अ प्रेशियस स्टोन, है ना। तो हम उस स्टोन को धारण करते हैं, हम उस स्टोन को पहनते हैं, बहुत सारे लोग है ना जो न्यूमरोलॉजी में या फिर इन स्टोन आर्ट में, जेम्स इन जिसमें बिलीव करते हैं, वो इनको पहनते हैं। तो पहले के जमाने में आप ये सोचो कि circa 3000 to 5000 BC की बात है, बिफोर द क्राइस्ट वॉज बॉर्न। वहां की बात है
कि एमरल्ड टैबलेट जो एक्सकवेट किया गया था उसमें ये निकला था कि बाय दिस मीन्स, मतलब एक सीक्रेट था, एक सीक्रेट टू गेट द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। एक्चुअली ये एमरल्ड टैबलेट्स का जो एंशियंट हिस्ट्री है ना, वो क्या है कि पहले के जमाने में उस टाइम पे पेपर की डिस्कवरी तो हुई नहीं थी कि आपको ये पता चले कि हम अपने हिस्ट्रीज को पेपर्स में, या फिर ऑब्वियसली कंप्यूटर्स का तो नाम ही नहीं था, तो हम लोग किस तरह से उसको सेव करके रख सकते हैं। जो राजा महाराजा होते थे या ग्लोरियस पीपल होते थे, वो क्या करते थे ना, वो ऑथर्स को से अपनी लाइफ स्टोरी को लिखने के लिए बोलते थे द वे दे वांट इट टू बी। तो बहुत सारे लोगों को जो वो सीक्रेट पता था ना, तो बहुत सारों ने वो आने नहीं दिया उसको सामने, जनता के सामने, लोगों के सामने, क्योंकि ये जो सीक्रेट है, इसको पता कर कर जो एक जैनिटर भी अगर ऊपर जा सकता है, एक मर्डरर भी एक बहुत अच्छा इंसान बन सकता है, वो ये वाली ग्लोरी उन्होंने इस सीक्रेट को बताने नहीं दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने एक्सकवेट करके, जब बहुत सारी एनर्जीज फ्लो हुई और उन्होंने एक्सकवेशंस करी, तो उसमें क्या हुआ, एक ग्रीन कलर का एक ट्रांसक्रिप्टेड इंस्क्रिप्टेड एक टैबलेट उन्होंने, एक स्टोन उन्होंने निकाला एक्सकेवेट करके। उसमें ये सीक्रेट लिखा हुआ था कि द सीक्रेट टू एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। जो ग्रीक मैथोलॉजी होती है या इजिप्शियन मैथोलॉजी है, उन सब में इस चीज का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और हमारे यहाँ पर भी इंस्क्राइब करके बहुत सारे एक्सकेवेशंस में इतने सारे सूत्र मिले हुए हैं, जिन्हें हमारे तो बुद्धा ने, महात्मा बुद्धा ने भी इतना ज्यादा इसके बारे में बात की हुई है। आप ये देखोगे कि आपको पता चलेगा कि ये चीजें आज की नहीं है, ये सीक्रेट तब से प्रिविलेंट है। जिसको इसके बारे में पता चला, उसने अपनी लाइफ चेंज करी। हमें जब से पता चला है, हमारी लाइफ चेंज हो रही है। और हम लोग अगर इसको भूल जाए ना, तो ये वाला जो मैजिक है, ये वाला चीज है, हम इसको भूल जाते हैं। हम लोग ना एक ऑफलाइन में चले जाते हैं उस टाइम पे। तो इसीलिए हम लोग इस बुक को बार 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 करते हैं, जब तक ग्रैटिट्यूड हमारे सारे के सारे सेल्स जो हैं, जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे, उनके अंदर हम एब्जॉर्ब नहीं कर लेते ना, तब तक हम इस मैजिक बुक को पढ़ते रहेंगे। मैम भी यही बोलती है, अगर ऐसे बोलती है कि मुझे लगता है कि अभी तक मैंने इसको पूरी तरह से अपने लाइफ में फॉलो नहीं किया, तो फिर मुझे लगता है मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती हूँ। क्योंकि मैम इतनी ज्यादा आप ये देखो, अपना इतने अच्छे से उन्होंने अपनी लाइफ को बनाया है, इतना ज्यादा टाइम वो हम लोगों को देती हैं, बिल्कुल सेल्फलेसली। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, अगर मैम ये चीज कर सकती है हमारे लिए, तो मैं अपने लिए क्यों नहीं कर सकती। अगर मैम रोज के रोज सेशंस में आ सकती हैं, सीधे बैठ के क्लासेस ले सकती हैं, तो मैं क्यों अपना कैमरा ऑन करके सीधे बैठ के नहीं ले सकती। मैं ले सकती हूँ। मैं मैम से सीखती हूँ, हर एक चीज मैम से सीखा हुआ है मैंने। जिस तरह से वो हमारे रोशन कर रही है हमारे रास्ते को, उस तरह उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, हम सारे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये सोचती हूँ। तो आप ये सोचिए, कितनी मैम अगर ये बोलती हैं कि अभी भी स्टिल आई हैव टू लाइक ग्रैटिट्यूड को मुझे अपने लाइफ में पूरी तरह से अब्सॉर्ब करना बाकी है, तो फिर मुझे भी बाकी। इसीलिए एवरी टाइम वी स्टार्ट दिस मैजिक बुक, मैं उतने ही तल्लीनता से इसको करने की कोशिश कर रही हूँ जितना मैंने फर्स्ट टाइम किया था। इनफैक्ट और भी बेटर तरीके से हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इस बार हम लोगों ने और भी अच्छे तरीके से करना है इसको। यस मैम, प्लीज रीड। Dedicated to you, may the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. रॉन्डा बर्न का इंटेंशन है कि जो मैजिक है हमारे लाइफ के सारे रास्ते खोल दे। जहां पर भी हमारे ब्लॉकेजेस हैं, वो ब्लॉक्ड रास्तों को हम लोग ब्रॉड कर दें, नैरो रास्तों को हम लोगों को ब्रॉड करना है, जो मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको रिमूव करना है। वो करके हम लोग एक बहुत अच्छा इंसान बने, ये रॉन्डा बर्न की इंटेंशन है हमारे लिए। इसी तरह से हम लोगों ने, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, हमने भी एक इंटेंशन स्टार्ट करना है। जब भी हम लोग कोई एक नया बिजनेस शुरू करते हैं या कोई भी नया महत्वपूर्ण काम करते हैं, हम एक इंटेंशन सेट करते हैं ना। तो इस तरह से आप लोग भी सारे, हम लोग भी सारे एक इंटेंशन सेट करेंगे। मेरा भी एक इंटेंशन है। मेरा इंटेंशन मैं आप बता रही हूँ आपको क्या है, कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस बार अपने सारे के सारे प्रैक्टिसेस बिल्कुल टाइम पे करूँ। मैं सारे के सारे प्रैक्टिसेस करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग का जो आफ्टरनून में जो करना है, वो हो सकता है मैं उतने घंटे के डिफरेंस में ना कर सकी हूँ, या कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तोड़ रह गया हो।
तो अब की बार मैं अपने आप को और ज्यादा सुधारूंगी। अपने जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करना, वो मैं करूंगी अब की बार। अब की बार ये चलिए मेरा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट इंटेंशन है। और एक और इंटेंशन है जो कि मैं चलिए आपके साथ जल्दी। डिस्कस करूंगी इस बुक के समापन होने के बाद, कंक्लूजन में डिस्कस करूंगी। या सो रोंडा वन का इंटेंशन ये है कि हमारे जो मियर एग्जिस्टेंस है उसको एक नई क्रांति मिले, है ना, हमारे लिए रास्ते सारे के सारे खुल जाएं। ये रोंडा वन का इंटेंशन है। हम भी अपना इंटेंशन सेट करेंगे। यस, नाउ द एक्नॉलेजमेंट्स। Acknowledgements. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just a universe and me. Then gradually the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of ever widening circle of creation that allowed the magic to reach you. सो रोंडा वन कहती हैं कि बहुत ही अकेले में, सॉलिटरी में उन्होंने इस बुक को लिखा है, जिसमें यूनिवर्स थे। मैम कहते हैं ना, यूनिवर्स इज आवर बेस्ट फ्रेंड। जिसमें यूनिवर्स थे और वो थी। तो यूनिवर्स क्या है? पूरा का पूरा एंटायर यूनिवर्स। जितना बाहर है उतना ही हमारे अंदर है। तो रोंडा बर्न कहती हैं कि पहले मैंने बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही अच्छे से यूनिवर्स के साथ बैठकर इंटेंशन सेट कर कर ये बुक लिखी। और उसके बाद धीरे 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 करके वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इतने सारे लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया और उनके इनपुट्स लेकर आज मैं ये बुक को कंपाइल कर रही हूँ, कर पाई हूँ, जो कि आपके हाथों में है। तो जो ये मैजिक बुक है वो खाली मेरा नहीं है, इसमें इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और आप ये देखना कि किस तरह से रोंडा बर्न ने इन सभी लोगों को, चाहे वो एक कैमरा पर्सन था, चाहे जिन्होंने पिक्चर्स उनके जो एडिटोरियल्स में डाली, चाहे इन्होंने एडिट किया होगा उनके साथ मिलके, हर एक इंसान को फीलिंग के साथ थैंक यू बोला है, अक्नॉलेज किया है। अब उनका जो काम है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसको अक्नॉलेज किया है उन्होंने। हम में से बहुत सारे लोग, हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमें, हमारे पास कोई चीज आ गई तो हम लोग कई बार उसको ना देने में शर्माते हैं कि नहीं, मतलब कहीं उस किसी और को इसका सीक्रेट ना पता चल जाए। लेकिन रोंडा बर्न कहती हैं, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि जो हमारे पास है ना वो और भी ज्यादा बढ़ेगा अगर हम सोसाइटी को देंगे। तो रोंडा बर्न इसके लिए, इस कारण सभी को अक्नॉलेज कर रही है, सभी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को। तो बहुत ही खूबसूरती से वो हमें सिखाएंगी कि किस तरह से वो जो रोशनी उनके पास थी वो धीरे धीरे करके पूरे उनका पूरा का पूरा टीम में गई और किस तरह से एक बुक के फॉर्म में हमारे पास आएंगी। यस मैम। Thank you, thank you, thank you to my daughters Key, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor Cindy Black from Beyond Words for her straightforward editing approach and probing questions which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Shamus Hoare and Carla Thornton, to Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me to take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Kerr, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington, and my sister Glenda Bell, who teamed up the photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create magical pictures in this world. And thanks to the other sacred team members whose behind the scene work is invaluable. Don Zick, Mark O'Connor, Mike Gardiner, Luri Sharapov, Corey Johansing, Shi Lee,
Peter Byrne, and my daughter Haley. Thank you, thank you, thank you to my publishers Atria Books and Simon & Schuster, to Carolyn Reddy, Judith Burr, Darlene DeLillo, Twisten Fan, James Pervin, Kimberly Goldstein, and Isolde Sor. I am blessed to have such an amazing team of people. Thank you, thank you, thank you to Angel Martin Velois for his spiritual guidance, love, and wisdom, to my sister Pauline Vernon, and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truth of life and who left their written words so that we might discover them to exactly the right time. That indefinable life-changing moment when we have the eyes to see and ears to hear. यस, तो आपने देखा कि रोंडा बर्न ने किस तरह 3 बार थैंक यू बोला हर एक इंसान को जिन्होंने इस मैजिकल जर्नी में उनको हेल्प करी, उन इस बुक को लिखने में जितने भी लोगों ने उनको हेल्प करी, उन सबको 3 बार थैंक यू बोला। थैंक यू वर्ड पे इतना एम्फेसाइज किया क्योंकि रोंडा बर्न कहती हैं कि 3 बार थैंक यू बोलने से क्या होता है ना कि आप उसको रजिस्टर करवा पाते हो, उस इंसान को रीजन के साथ थैंक यू जब बोलते हो तब उस थैंक यू का मतलब बनता है। नहीं तो थैंक यू को ऐसे ही हवा में फेंक देना, थैंक यू ऐसे बोल देना। आजकल तो थैंक यू की जगह TY लिख देते हैं हम, है ना, TY वो शॉर्ट फॉर्म हो गया है, वो थैंक यू की जगह TY। तो मुझे ऐसा लगता है कि थैंक यू को थैंक यू ही लिखें, क्योंकि थैंक यू वर्ड जो है ना पूरे पूरे इंटायर यूनिवर्स का एक बिगेस्ट प्रेयर है ये। सो थैंक यू की जगह TY लिखना, मतलब आई एम नॉट एट ऑल जजमेंटल इन दिस, दैट इज माई लोन पर्सपेक्टिव, कि मुझे लगता है थैंक यू लिखना, एक बोलना और लिखना, ये एक ब्लेसिंग है। जितनी बार हम इस ब्लेस्ड वर्ड को अपने मुंह से, अपनी कलम से और अपने फोन के कीपैड या कंप्यूटर के कीपैड से निकालेंगे, उतने ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में और भी ऐड होते जाएंगे। बाकी और चीज को YOU को यू लिख देती हूँ, बाकी चीजों को लिख देती हूँ, मैं एक्रोनिम्स लिखती हूँ उनको, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि थैंक यू को हमेशा मैं थैंक यू पूरा लिखूं। एंड रोंडा बर्न कहती है कि थैंक यू को एक बार नहीं 3 बार बोलो। 3 बार बोलने से उसमें फीलिंग और जुड़ जाती है। आपको ये बताना, और किस तरह से आपने देखा ना, हर किसी इंसान को उन्होंने पर्टिकुलरली बताया कि इस चीज के लिए थैंक यू, है ना, कैमरामैन को इस चीज के लिए थैंक यू, स्काई जो उनकी बेटी है उनको इस चीज के लिए थैंक यू, जो उनकी सिस्टर है जूडिथ उनको इस चीज के लिए थैंक यू, शाइली, जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी टीम है, हर एक टीम मेंबर को उन्होंने थैंक यू बोलकर और रीजन के साथ बोला है। और आपको पता है ना कि मैम भी बताती हैं जैसे कि ये जो टीम है उनके साथ उस टाइम से 2004 से अब तक उनके ये जो टीम है वो उनके साथ काम कर रही है। फॉर दिस रिस्पेक्ट, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। आप ये देखना बुक में, आप लोगों को तो पता ही होगा कि किस तरह से एक चैप्टर में उन्होंने एक देखा बोला है कि बताया था कि किस तरह से एक सर्विस पीपल को, एक सर्विस मैन को उनकी आंखों से आंसू आ गए जब रोंडा बर्न ने उसकी आंखों में आंखें डालकर थैंक यू 3 बार बोलकर रीजन के साथ बताया कि इसलिए थैंक यू। तो हमने भी कोशिश करके इस चीज को करनी है कि हम लोग जब भी थैंक यू बोले किसी को तो रीजन के साथ बोले, और थैंक यू को हम लोग जितना ज्यादा बोल पाए, जितना ज्यादा यूज कर पाए उतना कर। यस मैम। Contents. Do you believe in magic? A great mystery is revealed. Bring the magic into your life. A magical book. Day 1, Count Your Blessings. Day 2, The Magic Rock. Day 3, Magical Relationships. Day 4, Magical Health. Day 5, Magic Money. Day 6, Works Like Magic. Day 7, The Magical Way Out of Negativity. Day 8, The Magic Ingredient. Day 9, The Money Magnet. Day 10, Magic Dust Everyone. Day 11, A Magic Morning. Day 12, Magical Morning, Who Made a Difference. Day 13, Make All Your Wishes Come True. Day 14, Have a Magical Day.
Day 15, magically heal your relationships. Day 16, magic and miracles in health. Day 17, the magic check. Day 18, the magical to-do list. Day 19, magic footsteps. Day 20, heart magic. Day 21, magnificent outcome. Day 22, before your very eyes. Day 23, the magical air that you breathe. Day 24, the magic wand. Day 25, cue the magic. Day 26, magically transform mistakes into blessings. Day 27, the magic mirror. Day 28, remember the magic. Your magical future. The magic never ends. About Rhonda Byrne, except from the secret, except from the past. Do you believe in magic? सो इससे पहले हमने देखा कि रोंडा बर्न कंटेंट है इस पर्टिकुलर बुक का, जो कंटेंट्स है बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन कंटेंट है ये, कि किस तरह से कौन सी चीज हमारे लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस के साथ ना, डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस के साथ क्रोनोलॉजिकली उन्होंने ये कंटेंट लिखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है। उस तरह से हमारे लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज से शुरू करा है उन्होंने, बहुत ही इजी वे में, फिर उसी को और भी एनहांस करती गई हैं वो। जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके पास्ट पर फोकस करेंगे, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके प्रेजेंट पे फोकस करेंगे, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके फ्यूचर ड्रीम्स को अटेन करने के लिए आपको उस काबिल बनाएंगे। और उसके बाद सबसे ब्यूटीफुल चीज आती है कि आपको जब सीक्रेट का पता चल गया, आपको जब ये ब्लिसफुल जर्नी के बारे में पता चल गया, तब आप सोसाइटी को कितना दे रहे हो, है ना, उस चीज के बारे में बताती हैं। तो ये हमने कंटेंट में देखा। नाउ इज डू यू बिलीव इन मैजिक। अब आप देखते हैं कि मैजिक में आपको कितना बिलीव है। अगर हम लोग अपने आप को झकझोरेंगे बचपन से लेके आज तक, हम लोग देखते हैं कि हम लोग हमारे को कि मैजिक वर्ड पर कितना ज्यादा बिलीव है। इट्स ऑल अबाउट फेथ, यू नो। सो द पिक्चर जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, उस पिक्चर में एक ब्यूटीफुल ब्लिसफुल स्टार्स ही स्टार्स नजर आते हैं। ये ग्लिटर्स हैं, और ये ग्लिटर्स जो है ना, वो ग्रैटिट्यूड के ग्लिटर्स हैं। इसमें हमें दिख रहा है एक एवेन्यू बना हुआ है। इस एवेन्यू के बीच में एक एक रास्ता है। एवेन्यू का मतलब होता है एक रास्ता जिसके चारों दोनों तरफ जो है ना पेड़ ही पेड़ हो। और ये रास्ता जो है ना, इसके अंदर से आसपास तो डार्क है, लेकिन बीच में एक ब्यूटीफुल आपको एक टनल सा नजर आ रहा है, और वो टनल ऑफ ग्रैटिट्यूड है। वो एक डोर के शेप में है। तो रोंडा बर्न आज हमें उस डोर की ना चाबी देंगी, कि इस डोर की चाबी, इस डोर के ताले को जो है ना वो खोलो, और इसके अंदर आप जाओ। आप तब देखो कि ये कितना खूबसूरत दुनिया है, कितना खूबसूरत ये वर्ल्ड है, तब हम लोगों को पता चलेगा। तो ये मैजिक की दुनिया है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। यस मैम। Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, writer. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, the butterfly flittering through the air, and any strange leaf or the rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth, because it meant the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days to that magical night of Christmas, even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night. Somehow he did it, and he never let you down. Reindeer could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, and your imagination knew no limits. And you believed that life was magical. There is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thought
our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It is one of the reasons why as an adult we love to be around children, so that we can experience that feeling we once had, and even if it's just for a moment. I'm here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of the life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far, मैम वो लाइन अभी मैंने पढ़ी नहीं थी, इससे ऊपर वाली. Life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and the more breathtaking, of inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamt of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaves together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Yes, ma'am. So Rhonda Van says कि क्या आपको मैजिक वर्ड, जो मैजिक वर्ड आता है उस पर बिलीफ है? हम लोगों को वो ये बताती है कि जब हम बच्चे थे, हम छोटे बच्चे थे, तब हम लोगों को मैजिक पर बिलीव होता था. हम वो पीसी सरकार का इसका उसका मैजिक देखने के लिए हम जाते थे. वो मैजिक दिखाते थे, वो रैबिट टोकरी में से टोपी में से रैबिट निकालना, या मैंने देखा था ना वो सिर को ऐसे बेंड करके उसमें से पैसे निकालना, कान में से पैसे निकालना. एक बार हमारे स्कूल में आए थे तो एक मैम का ना वो रिंग ले लिया उन्होंने, तो वो मैम का रिंग जो है ना किसी बच्चे के पॉकेट में से निकाला. तो आपको पता है वो सब आंखों का धोखा होता है, लेकिन उस टाइम हमें नहीं पता होता कि वो आंखों का धोखा है. एक छोटा बच्चा उन बातों पर बिलीव कर लेता है, और वो बिलीव करता है कि ये सब तो सच में हो रहा है. तो वो जो बिलीव करता है ना वो सच में हो रहा है, इसलिए वो बच्चा बिल्कुल निष्पाप है. उसके मन में कोई भी मतलब कलह नहीं है, कोई इस तरह का जजमेंटल नहीं होता कि वो ऐसा कर रहा है वो वैसा कर रहा है. लेकिन हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, टीनेज में आए, अडल्ट बने, तो हमारे मन में क्या है ना, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, हमारे हॉर्मोन्स के साथ, हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ हम लोग डाउट करने लग पड़ते हैं. कि हमें हमें पता चलता है हम लोग लॉजिक पे ज्यादा बिलीव करते हैं, मैजिक पे बिलीव हमारा हट जाता है. तो रोंडा बर्न बोलती है कि हम लोगों को स्टिल, हम लोगों को मैजिक में बिलीव होना चाहिए. ये मैजिक ही तो है कि आपकी लाइफ में अगर आज कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशन आज आपका स्मूथ नहीं है, कुछ दिनों के बाद आपका रिलेशन सारे के सारे बहुत अच्छे हो जाएंगे. ये मैजिक है, और नहीं तो और क्या है कि किस तरह से एक बिल्कुल ही लो कैटेगरी में जो बंदा है वो ऊपर चला जाता है, रैग्स टू रिचेस. वो कहते हैं ना कि वो रिच डैड पुअर डैड में लिखा हुआ है कि इफ यू आर बॉर्न पुअर दैट इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर दैट इज योर फॉल्ट. ऑफ कोर्स इट इज योर्स, बिकॉज आपको लाइफ के बहुत सारी चीजों को, हमें एडवेंचरस लाइफ हमारी होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को इन सीक्रेट्स के बारे में पता चले कि हमें किस तरह से पैसा कमाना है. तो किस तरह से एक बंदा बिल्कुल ही रैग से रिचेस बनता है. तो ये मैजिक ही तो है ना, जिसको ये फॉर्मूला जो है, ये जो बुक है, ये सभी के सामने है. लेकिन क्यों सभी के सामने इस बुक को हम लोग, जिसको फेथ होगा, जिनको इन प्रैक्टिसेस पे बिलीव होगा, वो ये प्रैक्टिसेस करेंगे और अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बनाएंगे. लेकिन जहां हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि नहीं हम लोग उस चीज पर यकीन ना करें, वही हमारा जो है ना वो एक कहते हैं ना डिमोशन, वो शुरू हो जाता है
वी स्टार्ट लाइक मूविंग अवे फ्रॉम द मैजिक, और हम लोग वो प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं। ये प्रैक्टिसेस एक्चुअली साइंटिफिक ही हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस करती हैं सारी की सारी प्रैक्टिसेस, और ग्रैटिट्यूड पे बेस करती हैं। आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को मिलाकर बताई गई हैं ये प्रैक्टिसेस, सो दैट आप बिलीव करें इस पर स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली। न्यूटन, आइंस्टीन, इनके बहुत सारे जो है ना कोट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, है ना। तो आप ये देखोगे कि आपको इन चीजों पर, इस पर्टिकुलर जो फैक्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर बिलीफ होगा। आप ये देखोगे ना बायोलॉजी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पहले एक थ्योरी आई थी, उसके बाद दूसरी थ्योरी में हमें ये बताया गया कि ये नहीं है। मतलब बायोलॉजी को स्टडी ऑफ एक्सेप्शन ही बोला जाता है, कि ऑलवेज एन एक्सेप्शन। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अभी भी स्टडीज हो रही हैं, तो इसके बारे में भी बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं। तो हमें आगे जाके और भी अच्छे से पता चलेगा इनके बारे में। पर जितना हम लोगों को आज पता है, उसके हिसाब से अगर हम लोग अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करके इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, कि नो डाउट हमारी लाइफ जो है वो ऑ इंस्पायरिंग, एक्साइटिंग और अनबिलीवेबली गुड हो जाएगी। हमारे जो ड्रीम्स है, अगर आज आप एक फरारी भी ओन करना चाहते हो, अगर आप एक बहुत ही बढ़िया बीच साइड में एक मैंशन में रहना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपके हर एक रिलेशन खूबसूरत हो, वो एवरीथिंग इज पॉसिबल, दैट इज इन योर हैंड्स। आपको उसके लिए काम करना आ जाएगा। आपको यूनिवर्स पूरा का पूरा आपके काम करने में जुट जाएगा। आपको वो सीक्रेट का पता चल जाएगा कि किस तरह से आप एक बहुत ही अच्छा हेल्दी लाइफ आप अटेन जी सकते हो। आप अपने एक मैक्सिमम पोटेंशियल को अटेन कर सकते हो, है ना। आपकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करेंगे ये प्रैक्टिसेस। और रोंडा बर्न ने इस तरह से बताया है कि योर लाइफ विल नॉट बी द सेम अगेन, इट विल बी ब्रेथटेकिंग, ऑ इंस्पायरिंग एंड एक्साइटिंग। रोंडा बर्न हमारी लाइफ को, हमारे हर एक दिन को गुड मॉर्निंग के साथ साथ ब्लेसिंग्स से शुरू करेंगी। और हम लोग रात को सोएंगे तब भी ब्लेसिंग्स के साथ ही सोएंगे। तो रोंडा बर्न हमारी लाइफ को ऐसे बना देंगी। आपको यकीन करना पड़ेगा कि रेनडियर्स अगर फ्लाई नहीं करते, तुम नहीं करते होंगे, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो सच है ना, वो तो है ना। हम लोग अगर चलते हैं तो फ्रिक्शन के कारण हम लोग चल पाते हैं। हम लोगों ने ये साइंस में ये पढ़ा है। तो ये सारी की सारी चीजों पर बिलीव करके हम इन प्रैक्टिसेस को करेंगे, और हमने एक कंटिन्यूअस पुश मिलता रहेगा कि इन प्रैक्टिसेस को किस तरह से हमने अच्छे से करनी है। सो रोंडा बर्न कहती है आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से यूनिवर्स के सारी जो फोर्सेस है ना, वो कॉन्जोर होके इस तरह से ऑर्केस्ट्रेट करेंगे सारे के सारे पॉसिबिलिटीज को, सारे के सारे सर्कमस्टांसेस को, कि आप एक ब्लिसफुल, थ्रिलिंग और अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकोगे। यू विल नॉट बी द सेम अगेन, यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हमारा कंपटीशन किसी भी के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन हमारे कल के साथ है, कि किस तरह से हमें नाव में रहना है, आज में रहना है ना। क्योंकि ये जो नाव है ये भी कल पास्ट बन जाएगा। तो हमने पास्ट पर एम्फेसाइज नहीं करना है, हमने आज की अपनी लाइफ को फोकस करके, उसको स्ट्रेंथन करके, हमने अपने फ्यूचर को ब्लिसफुल बनाना है। तो यही पूरी की पूरी ये रोंडा बर्न की जो ये वाली बुक है, इसमें हम लोग यही सीखेंगे, है ना। तो इसके यहीं तक हम लोग आज पढ़ पाएंगे बिट्टी जी, ये बाकी Yes. का हम लोग कल से पढ़ते हैं। जी, जी. सो आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन, एंड नाउ विल शिफ्ट आवर फोकस इनटू द नेक्स्ट बुक ऑफ आवर्स। आई शेयर दैट स्क्रीन नाउ। Thank you. Yes, creative visualization is the second book that we'll be studying. Thank you so much, Bitti ji, for studying with so much, efficacy and efficiency and accuracy. Thank you so much. And this book will be read by Neetu ma'am from Kolkata. So, ये वाला जो book है, it's written by Shakti Gawain. The name of the book is Creative Visualization. हमारी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, हमारे मैनिफेस्टेशंस को अचीव करने के लिए, है ना, तीन एक स्टेप्स होते हैं मेनली, है ना।
स्टेप्स काफी सारे हैं, 3 मेन है। क्या क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, ग्रैटिट्यूड है, एंड थर्डली विजुअलाइजेशन है। तो यहाँ पर जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बुक है, यहाँ पर शक्ति गवेन ने विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में हम लोगों को बताया है। बहुत सारी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स है, मेडिटेशन टेक्निक्स है, अफर्मेशन है, ये सब उन्होंने हमें अवगत करवाया है। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा जिसमें हीलिंग के बारे में का सारा कि हमने किस तरह से अपनी हीलिंग करनी है, हम किस तरह से औरों की हीलिंग कर सकते हैं, हम किस तरह से सोसाइटी की हीलिंग कर सकते हैं, इसके बारे में था। ग्रुप में भी हमने हीलिंग करी, हमने अपनी हीलिंग करी, हमने बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स को सीखा, हमने मेडिटेट करना सीखा, हमने एक ऐसे सराउंडिंग्स में मेडिटेट किया, है ना, जिसको हमने अपना सैंक्चुरी बताया, जो कि हमारा बहुत ही मोस्ट कंफर्टेबल एरिया है, जहां बैठकर हम लोग बहुत अच्छे से मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेट करना हमें हमारे सुपर कॉन्शियस से जोड़ता है, यूनिवर्स से जोड़ता है, जो यूनिवर्स हमारे अंदर है और उतना ही हमारे बाहर है। जिस तरह से पेड़ को हम लोग देखते हैं ना, एक पेड़ जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन से नीचे भी होता है, उसके रूट्स, है ना, एंटैंगल्ड होते हैं सारे के सारे, बट स्टिल उतना ही बड़ा कहते हैं वो, जो जितना शूट होता है उसका उतना ही रूट होता है, उसकी लेंथ उतनी ही होती है। तो द सेम वे यूनिवर्स जितना बाहर है उतना ही हमारे अंदर है। तो अंदर के यूनिवर्स को बाहर के यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए हम लोग मेडिटेट करते हैं। सो हम लोग आज यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, simply make us strong. Yes, Meetu ma'am. Okay. Simply make a strong, clear statement to yourself that this quality is now coming to you. Another wonderful way to use the power of invocation is to summon the spirit or essence of a particular person who has qualities that you desire. If you invoke one of the masters, such as Buddha, Christ, or Mary, you are calling forth the universal qualities which that person symbolizes, which also lie within each of us. For example, if you call for Christ to work in you and through you, you are summoning in a very powerful way your own qualities of love, compassion, forgiveness, and healing ability. If there is any particular master or teacher or hero with whom you resonate, call upon him or her through invocation whenever you feel the need to manifest his or her special qualities within yourself. This type of meditation works beautifully when there is a special skill or talent that you wish to cultivate. For example, if you are studying music or art, call upon any great master in these fields whom you specially admire. Picture him or her supporting and helping you, and feel the person's creative energy and genius flowing through you. It is not necessary to incorporate any personal problem or weaknesses he or she may have had. You are summoning the person in his or her highest aspect. Many amazing results can be achieved through this meditation. So शक्ति गवेन यहाँ पर इन्वोक करने के लिए बोल रही हैं मेडिटेशन को, जो मेडिटेशन करने से पहले वो एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को, एक है ना, इस चीज को फॉलो करने के लिए बोल रही हैं कि जिस तरह से हम लोग बुद्धा के कदमों में चलकर हम लोग कोई भी, हमें एक गोल अचीव करना है, मान लो एक बहुत अच्छे डांसर आप बनना चाहते हो, एक बहुत अच्छे डॉक्टर आप बनना चाहते हो, एक स्पिरिचुअल गुरु आप बनना चाहते हो, है ना, आपका जो भी चाहत है उसको अटेन करने के लिए हमें एक आइडल बनाना पड़ता है कि हम उसको फॉलो करेंगे। तो हम जो इसको फॉलो कर रहे हैं ना, उस पर्सन में भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, हर किसी में होते हैं। हम लोगों को अगर देखिए तो महात्मा बुद्धा को हम लोग फॉलो करते हैं सारे के सारे, हम लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। स्टिल हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को छोड़ के गए वो ठीक नहीं था,
है ना। हम लोगों को कई बार लगता है ऐसा, लेकिन हमने उस पे फोकस नहीं करना है। हमने फोकस करना है किस पर? उनके सारे के सारे टीचिंग्स पर जो उन्होंने हमें सिखाई हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्राइस्ट के बारे में बताया है कि क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट थे, वो किस तरह से अपनी पावर को किस तरह से यूज करते थे, थैंक यू बोलकर यूज करते थे। किसी को हील करने से, मतलब वो जैसे कि जैसे रहते थे ना, वो इजराइल वहां पर रहते थे, तो आप ये देखो कि जिस किसी भी इंसान को कोई भी सफरिंग हो, उसको हील करने के लिए वो एक डिवाइन वाटर, होली वाटर, वाइन उसके ऊपर वो छिड़कते थे, उनको पिलाते थे, और उससे पहले वो ये बोलते थे कि थैंक यू फॉर क्योरिंग हिम, भगवान का शुक्राना, वो खुद मैसेंजर ऑफ गॉड थे, पर स्टिल वो शुक्राना करके उस इंसान को ठीक करने की कोशिश करते थे। और वो वाला इंसान स्पिरिचुअलिटी से, उस कन्विक्शन से बिल्कुल उठकर बैठ जाता था, ठीक हो जाता था। इसी तरह से महात्मा बुद्धा जो थे, उन्होंने वो बात बोला ना, बुद्धम संगम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो ये क्या था? ये जो बुद्ध है वो क्या है? वो एनलाइटनमेंट है। वो किस तरह से, वो धर्म का मतलब क्या है ना? धर्म का मतलब ये है कि जब आपको किसी के दुख में दुखी हो आप, किसी के खुशी में आप भी खुश हो, वो धर्म है। अगर मेरे किसी फ्रेंड ने मेरी फेवरेट स्कर्ट लेकर आ गई है, तो मुझे जब उससे जेलस नहीं होगी ना, वो धर्म होगा, है ना। अगर मेरे फ्रेंड ने, मैं जिस लग्जरी को पाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं 7 स्टार में जाकर रहूं, लेकिन आज वो मेरी फ्रेंड है, या मान लो मेरा दुश्मन है, अगर दुश्मन भी है तो भी वो जाकर रह रहा है 7 स्टार में, और मैं ये सोचती रहूं कि वो जाकर रह रहा है, मुझे रहना चाहिए था, उसने ऐसे लाइफ में कितने खराब खराब काम है किए हैं, पर स्टिल वो रह रहा है, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म वो है कि आपको जो इंसान आपको पसंद भी ना हो, आपका चाहे वो परम शत्रु हो, लेकिन उसके लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको वो खुशी हो। सबसे पहले तो धर्म को जब हम मानेंगे तो आपका शत्रु ही नहीं होगा कोई भी, है ना। नो वन विल बी एनिमी ऑफ योर्स। सो आप किसी भी इंसान की जब अच्छाइयों में खुश हो, उनकी ब्लिसफुलनेस से खुश हो, उनकी तरक्की से खुश हो, वो धर्म है। किसी के दुख में दुखी हो, वो धर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये मेडिटेशन करने के टाइम पे हम लोग उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो खूबियां हैं, उनको अपने अंदर इन्वोक करेंगे। तो उसके लिए वही हम लोगों को करना है। क्या करना है? जैसे हम लोग जमीन पर नीचे कॉटन या जूट का कोई भी हम लोग कपड़ा बिछाकर बैठेंगे, हम मैम हमें कहती हैं वैसे भी प्लास्टिक वगैरह बिछाकर नहीं बैठना है। फ्लोर पे या तो हम बेयर फ्लोर में बैठे, या फिर कुछ ऐसे कॉटन का कुछ कुछ नेचुरल चीज को बिछाकर बैठे, बिल्कुल पीठ सीधी करके, और हम लोग मेडिटेटिंग पोर्शन में, पोजीशन में बैठकर हम लोग मेडिटेट करें, और हम लोग बुद्धा का, या फिर हम लोग क्राइस्ट का, या मदर मैरी का, उनका हम लोग आगमन करें, उनका वेलकम करें कि वो हमारे अंदर आए, है ना। शक्ति गवेन क्या कहती है कि हम किसी को हील कर रहे हैं, उसके साथ अब हमारी पावर के साथ यूनिवर्स की पावर है। हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे यूनिवर्स का हाथ आ रहा है, जिसके कारण हम किसी को और खुद को हील कर पा रहे हैं। तो इसीलिए लाइफ में कोई भी गोल हमें चाहिए, तो उसको अटेन करने के लिए ये पर्टिकुलर मेडिटेशन उन्होंने बताया है, शक्ति गवेन ने, कि हम उस पर्टिकुलर इंसान को अपने लाइफ में इनवाइट करें, आंखें बंद करके मेडिटेटिव पोजीशन में उनको, उनका आह्वान करें। कहते हैं ना कि जब हम लोग पंडित भी हमारे हिंदू धर्म में जब पूजा करने बैठते हैं ना, वो सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं कि आइए बैठिए, यहाँ पर आप बैठिए और आप हमें गाइड कीजिए, है ना। हम लोग उनको, उनका आह्वान करते हैं, अपने स्थान को हम लोग थैंक यू बोलते हैं। इन सब चीजों को थैंक यू बोलकर, नवग्रह की पूजा करके तभी हम लोग शुरू करते हैं ना कोई पूजा या कोई भी अनुष्ठान है। बिल्कुल उसी तरह से ये वाला मेडिटेशन जब हम किसी पर्टिकुलर गोल के लिए कर रहे हैं ना, तो उसमें हमने उनका आह्वान करना है। बुद्धा का कर सकते हैं, आप अपने किसी हीरो का कर सकते हो, जो भी, जैसे मान लो आप एक सिंगर बनना चाहते हो, तो आप लता मंगेशकर की जैसी क्वालिटीज आप अपने लाइफ में लाना चाहते हो, तो उनका आह्वान करो कि किस तरह से वो इतने अच्छे से गाना गाती हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने, आपने उनके इंटरव्यूज देखे होंगे, क्या क्या चीजें वो बोलती हैं, उनका आह्वान करो कि उनके थ्रू आप अपने क्वालिटीज को और एनहांस करके दुनिया को कुछ दे सको। The meditation is all about that. You are healing yourself, you are gaining something, and you are delivering that. You are delivering and giving that to the society. It's all about this, है ना। तो किस तरह से हम अपने वीकनेसेस पे काबू करके, हम अपने पॉजिटिविटी को इनहैंस करके, यूनिवर्स के पावर के साथ कॉन्जोर करके अपनी लाइफ को
और साथ में औरों को भी हम लोग हील कर सकते हैं। कोई भी हम लोग अपने गोल को विजुलाइज कर सकते हैं इस कारण से। और विजुलाइजेशन टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, उसको विजुलाइजेशन ज्यादा अच्छे से, मतलब पिक्चर्स ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर हम लोग देखें तो लैंग्वेज तो हमारे लाइफ में बाद में आया ना, उससे पहले साइन लैंग्वेज होते थे, है ना। हम लोगों को जब लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होती, जैसे मान लीजिए ये जानवर हैं, है ना, जो भी एनिमल्स हैं, जो एनिमल किंगडम का पार्ट है, उनकी कोई लैंग्वेज होती होगी उनकी भी, पर हमें तो समझ में नहीं आती है। लेकिन है ना, वो हम उनकी आंखों से देखकर हमको समझ में आता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, है ना। द सेम वे हमारे जो लैंग्वेज है, हमारे लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो दैट कंस्टिट्यूट्स द 80% ऑफ योर लैंग्वेज, ऑफ योर कम्युनिकेशन, है ना। तो इस तरह से हम किस तरह से अपनी कैपेबिलिटीज को और इनहांस करके औरों को और अपने आप को इसका फायदा पहुंचा सकते हैं। ये इस प्रैक्टिस में, आपके मेडिटेशन टेक्निक में यही है कि आप किस तरह से सारे के पावर्स को अपने अंदर कॉन्जोर करके दुनिया को देते हो। उसमें आपका अकेले का योगदान नहीं है। आपको, हम लोगों को उसमें बोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है कि यू गॉट हील्ड बिकॉज ऑफ मी। नो वन एल्स, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन हील एनीवन अपने आप से। हमारे साथ यूनिवर्स रहता है, हमारे अंदर यूनिवर्स रहता है, उसके साथ कनेक्ट करके हम खुद को और औरों को भी हील कर पाते हैं। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज अबाउट दैट, एंड it's 7:02 now, so we'll have to, like log off our meeting here. Or Neetu ma'am, thank you so much for reading this chapter so beautifully. We couldn't, like, हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए इसके लिए, लेकिन कल हम नए दिन से नई तरह से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से। अफर्मेशंस के बारे में ये चैप्टर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कल ये चैप्टर हम लोग नए फ्रेश माइंड के साथ दोबारा से शुरू करें, बहुत अच्छे से। और ये मेडिटेशन वाला जो चैप्टर है, ये हमारा यहीं पर हम लोग कंक्लूड करते हैं इसको। आई जस्ट होप कि मैं आप लोगों को समझा पाई इसके बारे में। समझदार आप लोग सभी खुद हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना जो भी मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती थी, आई जस्ट होप कि मैं उसको कर पाई हूँ। एंड आई वेलकम ऑल योर क्वेरीज। अगर कोई क्वेरी हो या आप कोई ऐड करना चाहते हो इसमें, तो प्लीज, लाइक, यू आर होल हार्टेडली वेलकम। और हमारी कोई भी एक्सपीरियंसेस हो तो ऑब्वियसली वी कैन शेयर। या आई स्टॉप शेयरिंग। यस सुनैना, योर हैंड इज रेज्ड। 1 मिनट। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच प्रिया। इतनी एनर्जी, इतनी डेडिकेशन, इतना डिटर्मिनेशन, इतना डिवोशन, इतनी होल हार्टेडनेस। थैंक यू। जितने मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं सब तुमको डेडिकेटेड। आई एम ब्लेस्ड। अच्छा बोलो। प्रिया, मैंने एक ना बहुत अच्छी शेयरिंग करनी है, बट वो ना मैं यूट्यूब पे नहीं कर सकती बिकॉज वो कोई बहुत ही बड़े लाइक पॉपुलर इंसान के साथ कनेक्टेड है। तो अगर कोई और पहले करना चाहता है कर ले, मैं फिर आप जब रिकॉर्डिंग ऑफ कर Yes. दूंगी तब मैं। श्योर। कोई और अगर हमारे पास शेयरिंग है तब हम लोग वो कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद हम लोग फिर सुनैना की शेयरिंग ले लेते हैं। कोई और अगर शेयर करना चाहे, कोई एक्सपीरियंस हो उनकी लाइफ का। Message, if you can explain that. I don't know from whom. Yes, Bharti, you are saying something? Yeah, I'm just saying there's a message in chat box for you. Repeat once about past. Okay. Just a moment, I'll check that. Yeah. The first message. And thanks to you. Request. I was just a bit off color and I He was was asking about कि आपने पास्ट का क्या एक्सप्लेन किया था। लाइक आप बता रहे थे ना कि ये प्रेजेंट भी फिर पास्ट बन जाता है और पास्ट की चीजों पे हमें वर्क करना पड़ता है। उन्होंने वो पूछा था कि कैन यू एक्सप्लेन अगेन अबाउट पास्ट। वो जो हम बताते हैं ना कि कुछ एक्सरसाइज लाइक फर्स्ट वी हैव टू Yeah. वर्क ऑन द पास्ट, उस तरह से वो बात, इफ आई एम नॉट हाँ. मिस्टेकन, मतलब मुझे यही समझ आया था। या सो रचना, ये जो चीज है, जब हम पास्ट के लिए बोलते हैं, पास्ट का मतलब होता है कि जो हमारा बीत गया है ना कल, वो जो पास्ट है, हमारा जो आज है ना, हमारे कल के कारण है। जो हम लोग आज जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, जो भी हमारा थॉट पैटर्न है, वो सब इसलिए है क्योंकि पास्ट में जो हमारे जो मेंटल, हमने जो सुना है, हमें जो बोला गया है, हमें जो कहा गया है, वही हमारे अंदर इनग्रेन्ड है। जैसे हमें हमेशा बोला गया है कि वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स और आवर एल्डर्स कैन नेवर बी इनकरेक्ट, है ना। ये बोला गया है हमें, क्या हमें ये बोला गया है कि हमने जो अपना कल किया है
वही हमारा आज बताता है। तो ये इस तरह से हमारा जो पास्ट है, लेकिन हम लोग वो जानना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों को पता हमेशा ये बोलती हूँ कि आज मुझ में और तुम में खाली ये फर्क है कि मैं लाइफ के आपसे 20 साल पहले आई हूँ इस दुनिया में, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है उनमें और हमारे में। तो जो ये फैक्ट है कि हमारे पेरेंट्स हमेशा राइट होते हैं, हम रॉन्ग हो सकते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। दैट्स अ इट्स अ बिलीफ, कि जो बिलीफ है हमारा, हम लोग पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि बड़ा जो बोल रहा है हमेशा वो सही होगा। लेकिन ये हमेशा, आई एम सॉरी टू से, अगर आई एम रियली सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग एनीवन इन दिस, बट इट्स ट्रू दैट वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम लोग अगर शुरू से सोचे ना, जब हम लोग आदि मानव थे, तब हम लोग जंगल में थे। बहुत सारे जो पर्सन्स हैं, जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो इवॉल्व नहीं कर पाए। वो जो बंदर थे वो इवॉल्व कर पाए, वो अपने आप को बढ़ा पाए आगे। किस लिए बढ़ा पाए? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आए। हम लोग पहले विलेजेस में रहते थे, उसके बाद हम शहरों में रहने के लिए आए। सबको छोड़ना पड़ा ना अपने पेरेंट्स को, अपने जो अपना पास्ट है, अपने अतीत को छोड़कर हम लोग एक नए वर्ल्ड को एम्ब्रेस करने के लिए आए ना। उस तरह से रॉन्डाबर्न या फिर हमारी जो पास्ट को छोड़ने का मतलब होता है कि पास्ट में से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, आपको जो भी सिखाई गई हैं, जो भी आपने नॉलेज गेन किया है पास्ट में से, उन अच्छी अच्छी बातों को याद रखो, उनको जरूर याद रखें। उनके आगे हम लोग, उसके आगे दोबारा से एक नया फ्यूचर बिल्ड करेंगे हम लोग अपने प्रेजेंट के साथ। लेकिन जो पेनफुल मेमोरीज हैं, है ना, या जो हमारे इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि हम लोग एक एडल्ट हैं अभी, अभी हमें सही गलत का अंदाजा है कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए तो 18 ईयर्स ऑफ एज को बोला गया कि वोटिंग के लिए ये राइट एज है ना, क्योंकि उस तब हमारे पास ये थिंकिंग कैपेबिलिटी आ जाती है कि क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज गलत है। तो लेकिन अगर हम लोग अपने जड़ों के साथ ही जुड़कर रहेंगे हमेशा से, तो वो फिर डिस्पर्स नहीं होंगे ना, हमारी उन्नति और हमारी प्रगति नहीं होगी। इसलिए एक पॉइंट पे जाके हमें अपने पास्ट से आगे हटकर अपने फ्यूचर पे फोकस करने के लिए अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है। ये बोलना चाहती थी मैं कि प्रेजेंट हमारा जो अभी है ना, उसको जियो, बिकॉज दैट इज एक्चुअली अ प्रेजेंट। वो गिफ्ट है। प्रेजेंट इज सिनोनिमस फॉर गिफ्ट ना। सो योर प्रेजेंट इज योर गिफ्ट, तो हमें उस पर रहना है। वो प्रेजेंट जो है कल जाकर, कल नेक्स्ट मोमेंट में, बल्कि वो अभी का मोमेंट हमारा पास्ट हो जाएगा। तो इस पास्ट से हमें अच्छी अच्छी चीजों को चुन चुनकर आगे लेकर जाना है अपने फ्यूचर के लिए, है ना। वो कैरी करेंगे, हम अच्छी मेमोरीज को कैरी करेंगे, अच्छे थॉट्स को कैरी करेंगे। किसी ने अगर हमें बोला है कि तुम अच्छे से नहीं काम करती हो, तो उस पर नहीं जाएंगे, हम अपनी कैपेबिलिटी को और एनहांस करने की कोशिश करेंगे। वो है हमारा पास्ट। तो ये मैं बोलना चाह रही थी। उसके बाद रचना, क्या ये चीज आप जानना चाहते थे, अगर आप हो अभी सेशन में? She replied, Priya. She said, "Thank you ओके, so शी much." डिड। Yeah. Again, she ओके, replied, "Yeah, yeah. Yes. thank you, Again, she thank you replied. so much, thank you so much, Rachna, for raising this question. Yes. So Yes, anyone, so do we have any sharing? And yeah, thank you so thanks much. Like, to yeah, I really want to thank Deepti ma'am, like to give me this opportunity to take this very first introduction. I'm really blessed, and I'm really blessed for that. And I want to thank you, like thank each and every one of you for listening so carefully. और मुझे ये भी लगा, मैंने at the beginning में ही आपको बोला कि प्लीज आप लोग अपने म्यूट बटन्स वगैरह का ध्यान रखें। सो मैंने इसीलिए बोला सो दैट कि डिसरप्ट ना हो मीटिंग, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा। उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। नीतू मैम, आपको ढेर सारा शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से पढ़ा। और हमेशा जब भी मैं बोलती हूँ तुरंत मैम का रिप्लाई आ जाता है कि थैंक यू, तभी तभी मैम का रिप्लाई आ जाता है। आई एम सो लाइक, आई रियली वांट टू एक्सटेंड माय थैंकफुलनेस टू यू। एंड बिट्टी जी, ऑलवेज लाइक ऑलवेज आई वांट टू थैंक यू। विजय सर, बिट्टी जी को आज मैंने को होस्ट बनाया बैक एंड के लिए। पीछे से कोई अनम्यूट हो जाता है तो म्यूट भी हाँ कर जी, हाँ सकते थे जी, आप। नहीं मैंने एंड किया इसलिए था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। And yeah, if we do not have any sharing, like any other sharing, then we can stop the recording, and we can Sarita ji talk is some looking so pretty. talk something off Sarita the recording. I just want to say once thanks to you from the bottom of my heart. Like every time you just push me up. Like today I was a bit off color and I was thinking, okay, let be on bad only for some more time. But the moment you said to put on camera, so I just said and I said, nahi karna hi hai, because whatever you say, you
you, Deepti ma'am, that is especially like, इट्स जस्ट लाइक हमारे लिए बोला जा रहा है कि नहीं यार, आज कैसे लेट के कैसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं होता है, बैठ के ही करना है। नहीं बिल्कुल एक जिटर आता है ना मैम, जब भी कोई बात बोलती है ना, बाय गॉड मैं ना यही सोचती हूँ कि अगर वो कर सकती हैं, हमारे लिए कर रही हैं, तो क्यों हम नहीं कर सकते अपने लिए। हमेशा मुझे ये बात लगती है कि वो इतने सेल्फलेसली हमारे लिए कर रही हैं। ये सेशंस उनके लेवल पे होना और हम लोगों को इतना टाइम दे पाना, इतने अच्छे से अंग्रेजी में हिंदी में समझा पाना, साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। सबसे अच्छी बात है, वो उस दिन सुनैना ने भी अंडरलाइन किया था इस बात को, कि हर एक चीज शेयर करना। हमारी कैपेबिलिटी नहीं हो पाती इतनी बहुत ज्यादा लोगों की कि हम लोग सारी की सारी बुक्स पढ़ पाए, है ना। लेकिन वो अपने सारे के सारे बुक्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो बुक्स वो पढ़ती है ना, उसका निचोड़ हमें बता ही देती है ना। तो ये चीज बहुत अच्छी लगे। एज सिंपल एज कि अपने जो ब्यूटी ट्रिक्स है या वो सब है कि हमें ये करना चाहिए या मैं वो करती हूँ, वो भी बताती हैं। तो मतलब अगर वो हमारे लिए इतना कर रही हैं, तो क्यों हम नहीं कर सकते अपने लिए। ये मुझे हमेशा लगता है। एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु आर न्यू हियर, आई वुड लाइक टू से कि हमारे ये सेशन थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे भी आ जाएंगे। आप वहां पर भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना कि इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं कि नहीं। तो ये सारे के सारे जो सेशंस हैं, ये जो हमारे मॉर्निंग सेशंस, ये 6 से 7 बजे तक होते हैं, और ये यही सेशंस जो है रिकॉर्ड होते हैं। तो ये हमारे YouTube में अवेलेबल हो जाएंगे। मैजिक्स एंड मिरेकल्स बाय डॉक्टर दीप्ति वर्मा के नाम से हमारा YouTube चैनल है। आप प्लीज उसमें देख सकते हैं ये बाद में, है ना। तो प्रिया जी या शेयरिंग विल देयर इज वन ऑफ माय स्टूडेंट मेरे से एज में अच्छे बड़े हैं वो, बट yesterday he shared with me कि मैं नहीं बोल पाता हूँ वहां पे, but he attends regularly for the last 1 month and he told me कि एक मेरा बहुत बड़ा ऑर्डर जो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं यार, I don't want to work with you now, it's over, एंड ये प्रैक्टिसेस करने के बाद मुझे वो 40 लाख का डील 2 दिन पहले वापस मिल गया, एंड he is वाओ super वाओ, happy for that, स्टनिंग and he's स्टनिंग। connected to थैंक्स टू more यू than भारती। 80 groups. उन्होंने तो वो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, मतलब। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ना, एक बार जो यहाँ पर आ गया ना, वो तो जा नहीं सकता, मतलब मुझे ये पता है, क्योंकि वो ग्लूड हो जाता है सेशंस को ना। मुझे तो इनकी आदत बन गई है। मैं तो कहती हूँ कि दिस Yes, इज लाइक, दिस एक्ट्स एज अ ड्रग फॉर मी। मुझे तो इसका डोज yes. चाहिए ही होता है This हर is रोज मॉर्निंग में। addictive एंड वी sessions. ऑल कैन वाउच फॉर दैट। या सो लेकिन वो यहाँ पर आना, वो दिशा दिखाना, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए मुझे ना निधि निधि चौधरी है अहमदाबाद से। निधि, लाइक आप मुझे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हर रोज जितनी बार दीप्ति मैम को थैंक यू बोलती हूँ, अपने मियर एग्जिस्टेंस को थैंक यू बोलती हूँ, उतनी बार मैं निधि आपको थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आपने मुझे ये रास्ता दिखाया। थैंक यू सो मच। मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं मैम के स्टूडेंट्स में भी नहीं हूँ, तो मुझे मुझे मेरे पास कोई रास्ता होता ही नहीं अगर आप नहीं दिखाते ये रास्ता। सो निधि, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये चिराग का जिन दे दिया है। Thank you so much. And like Bharti, thanks to you because you are bringing in so many people. Bitti ji has introduced so many people I know. तो मुझे पता है कि किस तरह से हम लोग सारे के सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जिस तरह से हम लोग इंट्रोडक्शंस करवा रहे हैं ना लोगों का, हम लोग सोसाइटी को दे रहे हैं ये। दिस वे वी आर गेनिंग अ लॉट। जितना हम देते हैं उससे ज्यादा हम लोगों को मिलता है हमेशा। तो इस बात के लिए मैं सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी के सभी मेरे फैमिली मेंबर्स का, जो हमारी ये सुपर एक्सीलरेटेड लिविंग फैमिली में है, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत तल्लीनता से आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो, कि जितना आपको पता है वो आप दे रहे हो सोसाइटी में। एक इंट्रोडक्शन जो है हम लोग करते हैं तो उससे उसको मिलता है। सो या थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो एक और शेयरिंग या है बिंदु प्रिया जी। जी, एक और शेयरिंग है, या एक और है सेशन में। सो उनके साथ भी लाइक उन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट में कहीं लिखा था कि शी नीडेड अ डायमंड सेट एंड शी फॉरगॉट इट, लाइक बस लिख दिया था, एंड through one of her friends she just went to help her friend to a diamond shop, and somehow she took that, और फिर वो सोच रही थी कि ये तो मुझे कहीं से कहीं तक मुझे लेना ही नहीं था, क्यों ले लिया ये वो, and then when she turned the pages she saw that okay, she has written about it, and her daughter, there was not a good relationship, but nowadays her daughter loves her, adores her. उन्होंने तीज पे उसको मेहंदी लगाई खुद से और पूरी रात उसके पास बैठी रही,
And like for her Tej also, she did not purchase a single thing this time. And one of her friends suddenly came into picture, just called her कि क्या लिया, and she said कि नहीं अभी इस बार कुछ मन नहीं था. So she immediately gifted her everything she had planned for that day, like the same sari, bangles, and jewelry, and everything she gifted. Ki please, she was going out of India, so she said कि नहीं, please keep this gift from my side. So she also says that I feel magic एवरी मोमेंट. मैंने उनका एक ऑडियो भी शेयर किया था कि करना क्या है, थैंक यू ही तो बोलना है हर चीज के लिए, वही थी इतना आसान है. एंड लाइफ बहुत इजी हो गई है. सो शी इज डूइंग ऑल द प्रैक्टिसेस विद सो डिलीजेंट. शी वाज टेलिंग कि मैं रोड पे चलते हुए हर व्यक्ति पे मैजिक डस्ट डालती हूँ, और एक बार एक की कार फंस गई थी, सो आई जस्ट पुट अ मैजिक डस्ट, और वो इमीडिएटली पता नहीं कैसे निकल गई. इवन आई वाज जस्ट क्रॉसिंग, आई डिड नॉट रीच द सिग्नल ऑल्सो. सो बहुत बहुत सारे उन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर किए. सो थैंक्स टू यू, थैंक्स टू द एंटायर टीम, टू दीप्ति मैम, दोज हु overflow their energies to all of us. Thank you, thank you, thank you. Love you. Thank Love you. you. Thank you so much. And you fall in the same category. We all fall in the same category actually. कि मैं अब दीप्ति मैम ऊपर हैं obviously, but हम लोग सारे के सारे एक ही पायदान पे खड़े हैं. हम लोग सभी कर रहे हैं यही चीज जो आपने मेरे लिए बोली, और वो सभी के सभी हर एक पार्टिसिपेंट वो कर रहा है. एंड रियली आई एम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. हाँ जी बिंदु जी, आपका हैंड रेज्ड है. यस मैम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैं ना एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आंसर उसका चाहती हूँ कि जैसे मैंने आज कहीं जाना है, तो मतलब जाना है, मैंने क्विट नहीं करना. आई डोंट वांट टू क्विट, मतलब जाना है तो मुझे किसी का परमिशन चाहिए. तो उसमें ना 50-50 है कि परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, मन में डाउट आ रहा है कभी कभी. तो बस मुझे मैग्निफिसेंट आउटकम ही लगाते रहना है कि बिल्कुल, आपने मैग्निफिसेंट आउटकम करना है, और आपने ये जो 50-50 वाला चीज है ना, उसको 100% में आप कर दो कन्वर्ट, कि होगा. ओके. आपने जब हाँ ये फ्लोट कर दिया ना हाँ यूनिवर्स को कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो हाँ सबसे बिल्कुल पहला चाहिए. इम्पोर्टेंट चीज है कि फियरलेसली आप हाँ फेथ रखो यूनिवर्स पर. आपके लिए ओके. जो अच्छा होगा ना, जो जैसे होगा, वो यूनिवर्स आपके लिए वैसे ही करेगा, है ना. थैंक वट हाँ एवर जी हाँ इज बेस्ट फॉर यू, यूनिवर्स आपके लिए वैसे ही करेगा. एंड मैग्निफिसेंट आउटकम्स एक्चुअली इज द मोस्ट मैजिकल प्रैक्टिस. लाइक मुझे ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस, और मैं ये सबसे ज्यादा कर, आज भी मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम कर रखा है. तो मतलब या जहाँ यही जाना तो है ये वहां जाने के जिस पहले इंसान की परमिशन चाहिए उस पर, उसकी परमिशन से वहां जाने के बेहतरीन परिणाम के लिए गॉड थैंक यू, भगवान जी थैंक यू, ऐसे ही बोलना है. यस आप यस ये भी कह यस, सकते हैं, थैंक यू. इन हमें एवरी सिचुएशन ओनली बेस्ट आउटकम कम्स टू मी. लाइक ये एफर्मेशन एक होती है ना प्रिया? इन एवरी हाँ सिचुएशन ओनली बेस्ट आउटकम कम्स टू मी. सो जो आपको चाहिए ओ, वो आपके पास वही आएगा, और कुछ जी मतलब जी. वही आएगा, और भी नहीं ओके कुछ. थैंक यू. आपने क्या करना है, ओके. थैंक यू थैंक यू थैंक यू से आप 3 बार थैंक यू लिख देना चाहे. इससे हम हाँ अपने जी जो भी हमारा जो हाँ जी डिजायर हाँ है ना, जी जो भी हमारा जी हमारा जो भी जी जी. काम है, उसको हम लोग हाँ प्रिफिक्स जी कर लेंगे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम to the जी जी most amazing session taken by me today. This was my जी जी magnificent outcome today. जी And जी like जी जी जी. you will be telling me ki whether it went okay or not. Yeah. So yeah, we'll be concluding this now, and we'll be stopping the recording. यस. And off the recording, ओके we'll talk थैंक यू सो again. मच. So thank you so much, थैंक यू सो मच everyone. फॉर Thank you, सजेशन. Bindu ji, for raising your question. Thank you so much, Rachna, for raising the question. And thank you, Sunena, for adding your inputs. And thank you to each and every one of you. And thank you to Deepti ma'am for giving me this opportunity to upfront this, to introduce this magical book again, yet again into our lives. Thank you so much. Thank you.